everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Shab Pragya and today we will talk about cell. In the previous class of this chapter, we have discussed about general introduction about cell, and then we also discussed about several discoveries related to cell, and then we have studied about cell theory. And today we have to discuss about diversity in size, number and shape of the cell. So as we know friends, cell are of different types. Cell is different in different organisms, and not only this, in the same organism also, in the different part of the body, different types of cells are found. यहाँ तक कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म लिए जाएं तो उनके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल nerve cell or neuron is also considered as longest cell of the living world, and it is found in our body also. So if we talk about human body, longest cell is nerve cell or neuron. So neuron structure is totally different from the other type of cell, like adipose tissue cell we take, it is ring shaped cell. So different organs are having different types of cells. So a cell is different in different organisms, so it differs from organ to organ, organism to organism. That's why cell vary greatly in their size in different organisms and in different parts of the same organism. Cells are extremely small and cannot be seen without microscope. So cell can be seen only when we magnify it or we watch the structure of cell under a microscope. It's not possible to see the cell with our naked eyes. That means the size of cell is very small, and we measure the size of cell in micrometers. That is also known as micron. सेल को जो मेजर किया जाता है, इसके मेजर करने की जो यूनिट है, that is known as micrometer, and micrometer is also known as micron. Now the smallest cell found is a mycoplasma cell. अब what is mycoplasma? माइकोप्लाज्मा क्या है? अगर हम लोग सेल के साइज की बात कर रहे हैं तो ये सेल डिफरेंट साइज में पाए जाएंगे. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, इनकी जो मेजरमेंट होती है वह 1 to 10 माइक्रोन होती है. ठीक उसी तरह अगर हम लोग जैसे स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को वी शुड नो दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल. सो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया and its size is about 0.1 micron in diameter, whereas the longest cell are the nerve cell that I have discussed, measuring about a meter in length. इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है. and the largest cell are represented by the eggs of birds. So birds egg represent the largest cell. So अब बर्ड्स भी डिफरेंट साइज के होते हैं. ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड है, फिर हमिंग बर्ड की जो एग की साइज होगी वो थोड़ी छोटी होगी. उसी तरह ऑस्ट्रिच की जो एग सेल है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कंसीडर की जाती है, एंड इट्स साइज इज अबाउट 170 into 135 millimeter है, whereas 1 millimeter is equal to 1000 micrometers or microns. So 1000 माइक्रोन्स मीन्स 1000वां भाग है वो मिलीमीटर के. इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल की साइज कितनी छोटी होगी कि हमें वो नेकेड आई से दिख भी नहीं सकती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ सेल, हाउ इट वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और one part to another part of the animal. So small size of a cell presents a larger surface area. Here I have written small size present a larger surface area. ये कैसे पॉसिबल है? स्मॉल साइज मीन्स स्मॉल सरफेस एरिया होनी चाहिए. तो इसको हम लोग समझेंगे क्या बेनिफिट है सेल के जो छोटे साइज हैं उसकी क्या बेनिफिट है. व्हाई द सेल्स आर वेरी स्मॉल साइज्ड. तो ये इतने छोटे साइज की क्या बेनिफिट है उसको भी हम लोग जानेंगे. तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक क्यूब लेते हैं.
क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो क्यूब की जो साइड लिए, पहले हम लोग लेंगे 2 mm लेंगे, 2 mm। जब 2 mm लेंगे क्यूब की तो उसकी सरफेस एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, and then because 6 sides are there, 6 surfaces are there in a cube. How many surfaces? 6 surfaces. So we will multiply by 6. So the total surface area is equal to 24 square mm. तो अगर हम लोगों ने 2 mm साइड वाले क्यूब लिए हैं तो उसमें टोटल सरफेस एरिया क्या निकला, 24 स्क्वायर मिलीमीटर। अब क्या करना है, नेक्स्ट सिचुएशन में 2 mm की जगह हम लोग 1 mm कर देंगे साइड की लंबाई। तो इस तरह से 2 ब्लॉक बनेंगे, ऊपर वाले ब्लॉक में टोटल 4 और नीचे वाले ब्लॉक में भी 4 क्यूब्स बन जाएंगे। 1 mm जब लेंगे तो अब एक ब्लॉक की सरफेस एरिया क्या होगी, 1 into 1 into 6, बिकॉज 6 सर्फेसेस आर देयर। तो हर एक ब्लॉक की अब हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, तो 1 into 1 into 6, एंड देन टोटल 8 ब्लॉक्स आर देयर, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 8। तो इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, 48 स्क्वायर mm। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोगों ने साइड 2 mm लिया था उस वक्त क्या था, जो टोटल सरफेस एरिया वो हम लोगों ने पाया 24 स्क्वायर मिलीमीटर। जब हम लोगों ने साइड थोड़ी छोटी की, मीन्स स्मॉलर साइज्ड क्यूब लिए, तो क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया वी गॉट दैट इज 48 स्क्वायर mm। इस तरह से क्या देखा हमने कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ती गई, सेल का साइज क्या होता गया, छोटा होता गया। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द सेल एंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, जितनी सेल की साइज छोटी होगी सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। लेकिन सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया। सो इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सेल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स होंगे उनका क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का काम है कि गैसेस एक्सचेंज करना। जैसे हम लोग सांस, वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड एंड वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। तो ये जो एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज, वो जिस सरफेस से होगा, वो सरफेस जितनी बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकेंगे और वी कैन इनहेल मोर एंड अब्सॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो हर एक सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होगी, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड इज ब्रोकन डाउन। तो इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ने से ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल करने के बाद हम लोग उसको एक्सचेंज कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल कर पा रहे हैं। तो ये सरफेस एरिया की बेनिफिट कहाँ से मिले हम लोगों को, ये हुई सेल के साइज के छोटे होने के कारण। एज the size of the cell decreases, the surface area increases. Now we will talk about other types, digestive cells. Digestive cells में क्या होता है, in the intestinal wall एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स। ये जो आफ्टर डाइजेशन होता है, फूड के डाइजेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अब्सॉर्ब्ड फूड है उसको ब्लड में एक्सचेंज करना होता है, और वहाँ से क्या होता है, वहाँ जो एक्सचेंज होगा या अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होगा उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होती है। तो यही फायदे हैं सेल के छोटे होने का। तो ये क्या है, दिस इज द एफिशिएंट, दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्मॉलनेस ऑफ सेल। सेल के स्मॉल होने से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है हमारे बॉडी को। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्मॉलनेस ऑफ सेल। बट फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सेल शेप इज डिफरेंट, साइज इज डिफरेंट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट नंबर ऑल्सो। तो अभी हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल साइज डिफर करती है। ठीक उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो सेम ऑर्गेनिज्म के भी डिफरेंट पार्ट्स में अगर देखें तो वहाँ भी सेल साइज डिफर करती है। तो व्हाई दिस वेरिएशन अकर्स एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वेरिएशन, ये जो डाइवर्सिटी है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस डाइवर्सिटी। तो इसका भी यही कारण है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। तो जब सेल को नीड होती है जिस तरह के फंक्शन की, अकॉर्डिंग टू नीड इट इंक्रीजेज इट्स साइज और डिक्रीजेज इट्स साइज। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पाया कि
सेल साइज इज डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल. सेल को किस तरह के काम करने हैं, ठीक उसी तरह से इसके साइज भी बड़े या छोटे हो सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ सेल. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेल साइज डिफर कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में, ठीक उसी तरह सेल के नंबर भी डिफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. एंड in the first class we have studied that there are different types of organisms, and on the basis of number of cells we can differentiate organisms into three categories. First category hai if only one cell is present, then the organism is known as unicellular organism. If इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, सो प्रोटोजोअन्स, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए. इनमें क्या होता है, बॉडी जो मेडअप होती है वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है. यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स cell. So the body is made up of only one cell, and all the life processes are shown by only one cell. अब यूनिसेलुलर की बात हो गई, एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. नाउ फ्यू सेल्ड एनिमल्स. फ्यू सेल्ड एनिमल्स में क्या होती है कि बॉडी या तो 100 सेल्स की बनी हो, 1000 सेल्स की बनी हो, मीन्स मोर देन वन, बट फ्यू सेल्स की ही बनी होगी. फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा. तो स्पाइरोगायरा की बॉडी है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स की बनी होगी. वी कैन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स. नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन, दैट मीन्स मेनी सेल्स, एंड वी कैन नॉट काउंट द सेल. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, we are also the example of multicellular organisms. Now multicellular organisms की बॉडी मेडअप होगी बहुत सारे सेल्स से. अब आप लोगों ने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए. अब क्या कहना है, जो एक मेन पॉइंट है, अगर इफ वी डिस्कस अबाउट अ ह्यूज एनिमल, एलिफेंट यू टेक, एंड अनदर साइड हम लोग एक एंट को लेते हैं, तो एक एंट है और एक एलिफेंट है. अब क्या है कि एंट और एलिफेंट की बॉडी साइज इतनी डिफरेंट है, बॉडी साइज बहुत बड़े छोटे का अंतर है. तो इतना जो डिफरेंस है ये किस कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या उनमें सेल्स बड़े हो गए और एंट के सेल्स छोटे हो गए? ऐसा नहीं होगा. ये यहाँ पर जो साइज में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किस कारण से आया, दैट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स. बिकॉज इन एलिफेंट मोर नंबर ऑफ सेल्स आर देयर देन द एंट. क्योंकि एंट से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स एलिफेंट में है, इसलिए एलिफेंट की साइज ह्यूज हो गई और एंट में नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे. तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे डिफर करेंगे फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वी अंडरस्टूड दैट ऑल्सो. Now we will discuss about shape of the cell. As we have seen in case of size of cells, as we have seen that it differs from organism to organism. जैसे size of cell organism to organism differ करता है, and even in the same organism, किसी एक ऑर्गेनिज्म को भी लेते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स में सेल की साइज डिफर करती है. ठीक उसी तरह shape of the cell also differ organism to organism, and even in the same organism they are different in different parts of the organism. So the shape of cell varies not only in different organisms but also in different parts of the same organism. एक से ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के सेल भी डिफरेंट शेप के हो सकते हैं. उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं यहाँ पर, तो वी विल अंडरस्टैंड विथ मेनी एग्जाम्पल्स. एंड व्हाई दिस शेप डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. सेल के जो शेप हैं ये डिफर क्यों करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जैसे साइज डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन को उनको परफॉर्म करना है. सो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इट्स साइज. Just like that, according to its function, it changes its shape. So, the main factor regulating the cell shape is the function it performs. So, cell shape में जो changes आते हैं वो इसके जो function है, किस type के function को ये perform करती है उस पर depend करती है. So, cell may be spherical, oval, elliptical, spindle shaped.
क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कॉलमनर और फ्लैट सेल. ओके, प्लेट लाइक सेल. तो अब हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स के हेल्प से इसे समझेंगे. सो सेल टाइप अगर हम लोग लेते हैं जैसे अमीबा या फिर ल्यूकोसाइट लेते हैं, तो इनके जो शेप होते हैं कैसे होते हैं? इर्रेगुलर शेप. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इर्रेगुलर शेप ऑफ द सेल? तो चूंकि अमीबा और ल्यूकोसाइट्स के जो फंक्शन है वो क्या है? इन्हें कैप्चर करना पड़ता है फूड को, एंड लोकोमोशन ऑल्सो. फॉर लोकोमोशन ऑल्सो दीज आर डिपेंडेंट ऑन द सेम सेल. एक ही सेल को सारे सेल एक्टिविटीज, सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है. तो ऐसे केसेस में इनमें क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया. एंड ड्यू टू स्यूडोपोडिया देयर शेप इज इर्रेगुलर. उनके शेप इर्रेगुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ pseudopodia, and this pseudopodia helps them in food capturing and locomotion. So we can see that the shape of the cell depends upon the function of the cell. Now another example is paramecium. Its shape is लाइक अ स्लीपर. इनकी बॉडी जो होती है एक जैसे शूज के सोल की शेप होती है वैसे शेप की आप देख सकते हैं. सो सोल लाइक और स्लीपर शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड इट इज कवर्ड विथ हेयर लाइक सीलिया. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल? तो ये function है, it reduces resistance during swimming. It is aquatic organism and it helps in swimming. Cilia like structure is helping in swimming also. And this sleeper shaped structure, चूंकि ये क्या हो गया? स्लीपर शेप्ड है, आगे और पीछे से दोनों तरफ से थोड़ा कोनिकल हो गया. इस ये ब्लैंक शेप से रिड्यूस करती है इसके रेसिस्टेंस को विथ वाटर. सो इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन विथ वाटर वाइल स्विमिंग. Now next example is चिक सेल. चिक सेल हमारे चिक में जो सेल्स पाए जाएंगे उसके शेप कैसे होते हैं? इट इज फ्लैट और पॉलीगोनल. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लैट और पॉलीगोनल शेप? तो ये फ्लैट और पॉलीगोनल शेप इन्हें हेल्प करते हैं टू फिट लाइक अ टाइल्स इन अ फ्लोर. जैसे ये फ्लोरिंग का काम स्किन क्या करता है? एक आउटर कवरिंग है. यहाँ चिक सेल is forming a outer covering. So this flooring is done only by the flat cells, and that's why this shape is according to its function. Next example I am giving about intestinal cell. Now intestinal cells are found in the intestinal region. intestine में पाया जाएगा. अब intestine का काम जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड होता है. अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो सेक्रेटेड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ secretions are secreted by the intestinal wall. So इनके surface area को ज़्यादा करना होगा. और कॉलमनर शेप क्या होता है? कॉलम लाइक इनके काफ़ी लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं किसी चीज़ को पुश करने में, आगे की ओर भेजने में, सरकाने में. तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड को आगे की ओर भेजना भी है. तो ये फंक्शन जो परफॉर्म होगा कॉलमनर सेल्स से होगा. अब ये कॉलमनर सेल्स के ऊपर विलाई लाइक, दैट मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर found. So these projections are helping to increase the surface area for absorption and absorption of the nutrients and for secretion of enzymes also. तो ये surface area को increase करता है. That's why their cells are elongated and column-like, columnar with microvilli. Now we will talk about fat cells. Fat cells कहाँ पाए जाएंगे? तो ये स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे एक लेयर होता है जो फैट सेल एडिपोज टिश्यू के लेयर पाए जाते हैं. इनमें फैट सेल पाया जाता है और इनके जो शेप होते हैं वो राउंडेड होते हैं और रिंग शेप्ड होते हैं. रिंग शेप क्यों होता है? इनका शेप जो राउंडेड और रिंग शेप पाया जाता है क्योंकि इसके बीच में एक लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है और न्यूक्लियस क्या होता है? वो एक किनारे पर आ जाता है. तो ये रिंग शेप में जो पाया जाता है इसका कारण है कि यहाँ पर जो वैक्यूल्स है लार्ज, ये it will just store fat, and that's why its shape is rounded and ring like structure, and it will help to store fat. Now we will talk
talk about nerve cell. Nerve cell structure we are studying from class 5 onwards. So this is elongated and fiber like highly branched structure होता है. I think you all would have seen nerve cells. This is highly branched structure, and so this structure, so it is highly elongated structure. तो ये फाइब्रस और इलोंगेटेड होने से इसे क्या हेल्प मिलता है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? नर्व सेल का जो फंक्शन है वो क्या है? टू कंडक्ट मैसेजेस और नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स मैसेजेस किस फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे? नर्व इम्पल्स के फॉर्म में. सो हमारे बॉडी में जो भी मैसेजेस जाते हैं वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जाते हैं. तो नर्व इम्पल्स को जो ये कंडक्ट करती है, इसके लिए क्या होता है? एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इनको मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. सो इनके शेप काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं ताकि वेरी फास्ट वे में ये क्या कर सकते हैं? मैसेजेस को कंडक्ट कर सकते हैं. Now we will talk about xylem and phloem. So xylem and phloem are also elongated structure and tubular structure. सबसे पहले तो xylem and phloem, what is its location? So xylem and phloem is found in plants. ये plants के vascular system का part है. Xylem performs conduction. It just conduct water from one place to another place, water and minerals, and phloem conducts food from one place to another place. Okay. तो ये जो कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड है, दैट इज डन बाय जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसके लिए क्या होगा कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चाहिए. इस ट्यूब से होकर ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके. सो दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वी कैन सी इन केस ऑफ जाइलम एंड phloem, and this tubular structure helps them in the conduction of substances from one place to another place. In this way we can conclude that the function, सेल को कैसे फंक्शन परफॉर्म करने हैं उस हिसाब से उनके शेप होंगे, उनके साइज होंगे. सो साइज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फंक्शन एंड शेप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दे हैव टू परफॉर्म. सो माय डियर स्टूडेंट्स, in this session what we have studied, just summarize all the topics what we have studied in this module. Today we have studied about the diversity in size of the cell. We have studied how different size helps the organisms, and how the smallness of the cell benefit the organisms, and then number of cells क्यों वेरी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म. वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो. एंड जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट शेप ऑफ द सेल, कि शेप ऑफ द सेल क्यों वेरी करते हैं, एंड शेप और साइज ये दोनों वेरी कर रहे हैं ड्यू टू देयर फंक्शन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो. सो सी यू सून in the next video. Thank you for watching the video.